ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 61,281 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ 606 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 385 ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 2025 ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਸਾਡੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਮਵੀਰ ਨਾਥ ਸੋਢਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾइम ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? देखो जी, ये जो अभी आप देख रहे हैं, अभी हम लोग जो कर रहे थे, ये ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम है बीन जोगी सपेरा नृत्य है। और इस ग्रुप में जितने भी कलाकार काम करते हैं सारे नाथ संप्रदाय से आते हैं। इस संप्रदाय के इष्ट गुरु आदि गुरु कानिपा नाथ है, और वे कानिपा नाथ जो हमारे गुरु थे उनके बारे में हमारे ऐसा बताते हैं, बुजुर्ग हमारे महाराज ऐसा बताते हैं कि वे जिस भी गांव या बस्ती में जाके बीन बजाते थे, उस गांव की समस्त रोगियों के रोग उनकी बीन की धुन को सुन के दूर हो जाते थे। वे इसलिए कभी एक जगह न ठहरते, सदैव भ्रमण करते रहते थे। आज इस गांव में, कल उस गांव में, ऐसे घूमते रहते थे वो। और कल तक ये कला सपेरा जाति का एक रोजी रोटी का महत्व था। गाँव में जाकर के बीन बजाना, सांप का खेल दिखाना, तमाशा दिखाना, आप लोगों ने देखा भी होगा। पहले जाते थे गांव में तमाशा कर करके। कल तक ये कला एक रोजी रोटी का सपेरा जाति का महत्व था, लेकिन बदलते दौर में आज इस कला ने एक नया मोड़ लिया है। आज भारत में लगने वाला कोई भी बड़ा मेला, फेस्टिवल, कोई उत्सव कोई मनाया जाता है, इस ग्रुप को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। और इस ग्रुप ने भारत के अलावा कई फॉरेन कंट्री में भी जाकर के अपनी संस्कृति को दिखा चुके हैं हम लोग। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? हाँ जी, हाँ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ? देखो जी, दुबई, कनाडा, शारजा, अबू धाबी, इटली आदि देशों का भ्रमण ये ग्रुप कर चुका है एक तरीके से। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ये हमारे जो बुजुर्ग है, तो वो उनके जो हमारे आदि गुरु थे कानिपा नाथ, जो 9 नाथों में से एक थे, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, जलंधरनाथ। तो उस टाइम से वो बताते हैं कि ऐसा था उस टाइम में, लोग मानते थे। न जाने आदिकाल की बहुत समय की चली आ रही है वो बात, कि वो बताते कि जिस गांव बस्ती में रोग शोग होते थे तो गांव के लोग उनको बुला के ले जाते थे। उनकी बीन की धुन में वे कुछ राग रागनी कुछ ऐसा बजाते थे, जो माहौल ऐसा हो जाता था कि गांव, जिस बात को कुछ हद तक आज विज्ञान भी मान रहा है कि संगीत सुनने से लोगों को, बीमार लोगों को भी उससे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? देखो, ये तो हमारे तो जो बच्चे जो होते हैं
10-12 साल की उम्र हुई उसको बीन बना करके उनके बाबूजी दे देते हैं। वो उसको फिर धीरे धीरे सिखाते हैं, फिर वो उसको गांव में भी ले जाते हैं, फिर उनका एक रोजी रोटी का महत्व हो जाता है। जैसे कि मेरे बाबूजी बजाते थे, दादाजी बजाते थे, 10-12 साल की उम्र मेरी हुई तो मुझे बीन बजाना दे दिया, तो मैं बजाना फिर मुझे दे दिया, मैं सीख गया। रही बात इसमें कुछ कुछ संगीत बजाने की, तो पहले हमारे जो उनके अपने बनाई हुई कुछ धुनें थी, लोक धुनें, वो तो हम लोग बजाते हैं, लेकिन बदलते दौर में अब इंडस्ट्री में भी हम लोगों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। फिल्म इंडस्ट्री का, हिंदी सिनेमा का लें तो बीन सपेरे के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। तो हम इनमें कई मेले वगैरह में कुछ लोग कहते हैं बाबा उस गाने की धुन बजाओ, उस गाने की धुन बजाओ। तो नई नई फिल्में जो गाने पॉपुलर होते हैं तो हम कोई भी गाने की धुन इसमें निकाल के बजा देते हैं। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕ ਗਾਣੇ ਜੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕ ਗਾਣੇ, ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ? कोई अंदाजा नहीं, अनगिनत। जैसे अभी आप सुने थे परदेसी परदेसी जाना नहीं, अभी हम बजा रहे थे, इससे पहले हमने बजाया था उड़ जा काले कावां, और एक दो हमारी नागिन फिल्म आई थी, नागिन में जितने भी गाने थे वो सपेरा इसी को। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ती है जी। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ? प्रैक्टिस तो जी 2 साल भी लग जाती है, 4 साल भी लग जाती है। किसी को जल्दी सीखने में आ जाता है, किसी को टाइम लग जाता है। ये तो अपने मेहनत के ऊपर बात है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਸ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सत श्रीकाल जी, मेरा नाम रामवीर नाथ सोडा है। ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਆਰਟ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? देखो जी, ये जो अभी आप देख रहे हैं, अभी हम लोग जो कर रहे थे, ये ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है बीन जोगी सपेरा नृत्य। ਜੀ। और इस ग्रुप में जितने भी कलाकार काम करते हैं सारे नाथ संप्रदाय से आते हैं। इस संप्रदाय के इष्ट गुरु आदि गुरु कानिपा नाथ है, और वे कानिपा नाथ जो हमारे गुरु थे उनके बारे में हमारे ऐसा बताते हैं, बुजुर्ग हमारे महाराज ऐसा बताते हैं कि वे जिस भी गांव या बस्ती में जाके बीन बजाते थे, उस गांव की समस्त रोगियों के रोग उनकी बीन की धुन को सुन के दूर हो जाते थे। वे इसलिए कभी एक जगह न ठहरते, सदैव भ्रमण करते रहते थे, आज इस गांव में, कल उस गांव में, ऐसे घूमते रहते थे वो। और कल तक ये कला सपेरा जाति का एक रोजी रोटी का महत्व था। गाँव में जाकर के बीन बजाना, सांप का खेल दिखाना, तमाशा दिखाना, आप लोगों ने देखा भी होगा, पहले जाते थे गांव में तमाशा कर करके। कल तक ये कला एक रोजी रोटी का सपेरा जाति का महत्व था, लेकिन बदलते दौर में आज इस कला ने एक नया मोड़ लिया है। आज भारत में लगने वाला कोई भी बड़ा मेला, फेस्टिवल, कोई उत्सव कोई मनाया जाता है, इस ग्रुप को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। और इस ग्रुप ने भारत के अलावा कई फॉरेन कंट्री में भी जाकर के अपनी संस्कृति को दिखा चुके हैं हम लोग। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? हाँ जी, हाँ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ देखो जी, दुबई, कनाडा, शारजा, अबू धाबी, इटली आदि देशों का भ्रमण ये ग्रुप कर चुका है एक तरीके से। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ये हमारे जो बुजुर्ग है, ਹਾਂ। तो वो उनके जो हमारे आदि गुरु थे कानिपा नाथ, जो 9 नाथों में से एक थे, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, जलंधरनाथ। तो उस टाइम से वो बताते हैं कि ऐसा था, उस टाइम में लोग मानते थे, न जाने आदिकाल की बहुत समय की चली आ रही है वो बात, कि वो बताते कि जिस गांव बस्ती में रोग शोग होते थे तो गांव के लोग उनको बुला के ले जाते थे, उनकी बीन की धुन में वे कुछ रागनी कुछ ऐसा बजाते थे, जो माहौल ऐसा हो जाता था कि गांव, जिस बात को कुछ हद तक आज विज्ञान भी मान रहा है कि संगीत सुनने से लोगों को, बीमार लोगों को भी उससे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 뮤직 ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ?
देखो ये तो हमारे तो जो बच्चे जो होते हैं 10-12 साल की उम्र हुई, उसको बीन बना करके उनके बाबूजी दे देते हैं। वो उसको फिर धीरे धीरे सिखाते हैं, फिर वो उसको गाँव में ले जाते हैं, फिर उनका एक रोजी रोटी का महत्व हो जाता है। जैसे कि मेरे बाबूजी बजाते थे, दादाजी बजाते थे, 10-12 साल की उम्र मेरी हुई तो मुझे बीन बजाना दे दिया, तो मैं बजाना फिर मुझे दे दिया, मैं सीख गया। रही बात इसमें कुछ संगीत बजाने की, तो पहले हमारे जो उनके अपने बनाई हुई कुछ धुनें थी, लोक धुनें, वो तो हम लोग बजाते हैं, लेकिन बदलते दौर में अब इंडस्ट्री में भी हम लोगों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। फिल्म इंडस्ट्री का हिंदी सिनेमा का लें तो बीन सपेरे के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। तो हम इनमें कई मेले वगैरह में कुछ लोग कहते हैं बाबा उस गाने की धुन बजाओ, उस गाने की धुन बजाओ। तो नई नई फिल्में जो गाने पॉपुलर होते हैं तो हम कोई भी गाने की धुन इसमें निकाल के बजा देते हैं। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਜੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ? कोई अंदाजा नहीं, अनगिनत। जैसे अभी आप सुने थे परदेसी परदेसी जाना नहीं, अभी हम बजा रहे थे, इससे पहले हमने बजाया था उड़ जा काले कावां, और एक दो हमारी नागिन फिल्म आई थी, नागिन में जितने भी गाने थे वो सपेरा इसी के ऊपर। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है जी। कितनी को प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तो जी 2 साल भी लग जाती है, 4 साल भी लग जाती है, किसी को जल्दी सीखने में आ जाता है, किसी को टाइम लग जाता है। ये तो अपने मेहनत के ऊपर बात है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ।